Hi, this is Komal Chaudhary, and I welcome to all at my YouTube channel GS365. And the topic for the day are working of the Constituent Assembly, and second topic will be the objective resolution. Third will be the some committees and some facts we will cover in this lecture. Till now, we have covered two major topics, that is historical background of the Indian Constitution, and another one is making of the Constituent Assembly and its formation. Right? We have detailed discussed in previous classes regarding these topics. Now we are here to discuss the working of the Constituent Assembly, and second will be objective resolution. In objective resolution, we will cover the provision of this and what is the meaning, what is the key feature of this resolution, because of this resolution has become as a preamble of the Indian Constitution, and because of its philosophy and philosophy part. Okay, so without any delay, we are starting our class. So if you have not subscribed the channel till now, I request you to please subscribe the channel to get the more information. This is the channel name GS365. Okay, I have one information more. In previous class, I pronounced a date that is 20 Feb 1949, but unfortunately, I wrote on the panel 20 August. It is wrong. So if you have written wrong, so correct it. But I pronounced correct, but by mistake, it had written 20 August. So it is wrong. Right there, 20 Feb 1947. Okay. So let's start without any delay our class. The first topic is working of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly held its first meeting on 9th December 1946. In this meeting, 211 members attended this, and the oldest member of the Constituent Assembly, Dr. Sachidanand Sinha, was elected as a temporary president. Clear? Why have we done this? We have followed the French practice. So we have elected Dr. Sachidanand Sinha as a temporary president of the Constituent Assembly. This was the work for the first meeting. So first meeting was held on 9th December 1946, and we in the sense Constituent Assembly members. Okay, we in the sense we are not saying I. We means Constituent Assembly's members. We elected him नहीं, Dr. Sachidanand Sinha यहाँ पे. We elected Dr. Sachidanand Sinha as a president, temporary president लिखेंगे, because of in the next meeting we elected the permanent president, that was Dr. Rajendra Prasad. Okay, so we will discuss it. Right now I'm writing temporary president. This was the first meeting. This was happened in the first meeting. Okay. Later on, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. Clear? Later on, Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of the Constituent Assembly. Clear? I hope it has not any rocket science. It is very damn clear. Okay. Now we have two people who are the vice president of the Constituent Assembly, and that were H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. So one another point, that is we have two vice president of the Constituent Assembly. One is H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. Right? In simple word, we have one president of the Indian Constituent Assembly, and we have two
vice president of the Constituent Assembly. Till now we have covered little bit facts. First meeting was happened 1946. What was happened? 211 members were present in that meeting. In that meeting, we elected a temporary president, that was Dr. Satyan Sinha. It is very important. Various exams covered this fact. Okay, so be very attentive at the time, since now class will be very efficient to you. Okay, and third one, later on we have covered that Dr. Rajendra Prasad was the permanent president for the Constituent Assembly, and we have two vice president of the Constituent Assembly, that were S.C. Mukherjee and V.T. Krishna Machari. Clear? Okay. So that was the function of the Constituent Assembly in first meeting and second meeting. In third meeting, Pandit Jawaharlal Nehru, P.T. Nehru, moved a resolution that was called Objective Resolution. This is the second topic that will have been covered by us in this lecture. Okay. So topic is Objective Resolution. Objective Resolution. उद्देश्य प्रस्ताव. Sorry. उद्देश्य प्रस्ताव. It was moved by the Pandit Jawaharlal Nehru. यानी कि it was moved by P.T. Nehru. यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा से लाया गया था ऑन 13 दिसंबर 1946. कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को. क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था. क्लियर? व्हाट वाज इन इट? इसमें क्या था? व्हाई इट हैज बिकम द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ऑफ इट लेड डाउन द प्रोविजन, द फंडामेंटल्स एंड द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. यानी कि इसमें भारत के संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो दिया हुआ है. जब कोई क्लॉज या कोई पार्ट संविधान का सुप्रीम कोर्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, द जजेस वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे सी थ्रू द प्रीएम्बल. बिकॉज ऑफ प्रीएम्बल इज द फिलॉसफी, प्रीएम्बल हैज द फिलॉसफी पार्ट. यानी कि जब संविधान बना था उसका दार्शनिक भाग क्या था, यानी कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, किस तरीके के विचार रखना चाहते हैं, किस तरह की चीजें उसमें हो, किस तरह का प्रशासन उसमें होगा, जो फंडामेंटल्स हैं वो दिए हैं हमारे प्रीएम्बल में. और प्रीएम्बल किससे बना है? उद्देश्य प्रस्ताव से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से. दैट इज व्हाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? चलो तो नोट कर देता हूं. इट हैज द फंडामेंटल्स, वैल्यूज एंड फिलॉसफी पार्ट ऑफ द क्लियर? जो मैंने बोला वो यहाँ पे नोट किया है. ठीक है. अब पॉइंट आता है कि जब पेश किया गया था, यानी जब मूव पेश किया गया था रेजोल्यूशन को, तो 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया था. ठीक है. सिंपल वर्ड इन इंग्लिश मैं कैसे कहूँगा? दिस रेजोल्यूशन वॉज अनोनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947. यानी कि जो प्रस्ताव है इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया था और पास कर दिया गया था. क्लियर? यानी कि अनोनिमसली क्या होता? पास हुआ था. ऑन 22 जून 1947, जून 22, 1940. यानी कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पास कर दिया गया. क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की. की पॉइंट्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, यानी कि व्हाट इज द की पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. वी विल डिस्कस इट. ओके, सो नाउ वी विल गो फर्दर. फर्स्ट पॉइंट है सॉवरेन. जो वैल्यूज थी, मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, पॉइंट्स स्लाइड में हम देख लेंगे. तो मैं सिनॉप्सिस में वैल्यूज समझने की कोशिश करूंगा कि आपको जो वैल्यूज हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई हैं, वो वैल्यूज भी क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है. ठीक है. तो सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो वैल्यूज हैं ये भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी. तो की पॉइंट्स अगर हम डालें, जैसे कौन से की पॉइंट्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एम्ड
it aimed to declare India as independent. To declare India as independent. दिस इज द की फीचर. ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में पहला फीचर अगर हम देखें, की पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, इट इज नॉट द प्रोविजन, इट इज द की फीचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, जो हमें क्या है, ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं. जब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ेंगे अभी, तो आपको दिखेंगे कि ये सब वैल्यूज दी हुई हैं. दिस इज नॉट प्रेजेंट एनी बुक, दिस इज द एनालिसिस ओनली. ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये एनालिसिस है. ठीक है, तो पहला पॉइंट जब हम बात करते हैं तो क्या दिखता है हमें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो क्या करता है, क्या घोषित कर रहा है कि यह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना पर घोषित स्थापना को दिखा रहा है, जिसकी क्या है, अपनी संप्रभुता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन लोकतांत्रिक व्यवस्था है. क्लियर. सेकंड अगर बात करूं जस्टिस, जस्टिस की अगर हम बात करें, जब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में तो आप देखेंगे इट एम्फेसाइज द जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स irrespective of their caste, creed and religion. यानी कि यह न्याय पर भी इसमें पॉइंट्स हैं जो कहता है कि सभी के लिए न्याय बराबर होगा, सभी के लिए न्याय बराबर होगा, धर्म जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा न्याय में. ठीक है, अभी मैं सिर्फ जस्टिस की बात कर रहा हूं, यानी कि जस्टिस में कोई भी अन्याय नहीं होगा किसी के साथ, सभी बराबर हैं, जाति धर्म के आधार पर कुछ भी अन्याय नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमें उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है. जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहां भी नोट है, फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये सब कड़ी है. तो जो प्रियम्बल बना, क्यों बना, कि ऐसे पॉइंट्स ही हैं इसमें सारे. ठीक है, तो जब हम बात करें जस्टिस, तो जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, तीनों जस्टिस की बात करता है. ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, तीन जस्टिस की बात करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम एक वर्ड समझते हैं, इक्वलिटी. नेक्स्ट वर्ड क्या है, इक्वलिटी. इक्वलिटी, तो थर्ड वर्ड आता है हमारा इक्वलिटी. इक्वलिटी से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो इट सॉट टू द एवरीवन, इट सॉट टू एवरीवन टू एंश्योर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस. यानी कि ये बात करता है सभी के लिए समानता की बात करता है, सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसकी समानता की बात करता है. यानी कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 16, तो उसकी जो फिलोसफी पार्ट है वो कहां दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में भी दिया हुआ है. सिंपल. तो इट्स एंश्योर, क्या एंश्योर कर रहा है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी. आई होप यहाँ तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा. ठीक है, और ये ऐसा नहीं सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है, जो इक्वलिटी हो रही है वो इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल लेवल पे, है ना, व्यक्तिगत रूप में. सिंपल. तो हिंदी में भी आप समझ में आ गया हो सकते हैं. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक हमारा एक और है, फ्रीडम की हम बात करते हैं, फ्रीडम. ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम से रिलेटेड इस रेजोल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है. तो इट अपहेल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड प्रैक्टिस ऑफ देयर बिलीफ. यानी कि जब हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता, उसे अपनाने की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, आर्टिकल 25 की हम बात करते हैं, तो हमें उसका जो फिलोसफी पार्ट है वो कहां दिखता है, वो दिखता है हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में. यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये भी कहां दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. क्लियर. किसका, एंड बिलीफ और वर्शिप भी दिया हुआ है. तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप. क्लियर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा अगर बात करें तो प्रोटेक्शन, इनका प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम। माइनॉरिटीज हो गया या फिर शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, इनकी ही बात की गई है, इनकी ही बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी हमें देखने को मिलती हैं। यानी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस आर मेंशन इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्लियर? तो प्रोटेक्शन किसका? माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है? और सिंपल समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फोकस ऑन दी सेफगार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। ठीक है? तो इट इज ए वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इट हैज वेरी डिटेल्ड फिलोसफी पार्ट which is also mentioned in preamble as a philosophy and detailed articles we have in our constitutions. So it is eventually formed of the basic for the preamble of the Indian Constitution and adopted 2022 Jan 1947. It is already mentioned on the digital panel. Here. कब पास हुआ था? 22 जून 1947 को। ठीक है? यहां तक आई होप हम बहुत क्लियर तरीके से चीजें समझ गए हैं। ठीक है? अभी हम देखते हैं कि प्रोविजंस क्या थे। व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस के साथ। तो इंडिया इज ए सोवरन एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, यानी भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में होगा, इनका ये कहना था। अकॉर्डिंग टू, अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, उनको हम पढ़ रहे हैं। इंडिया शुड बी ए यूनियन, भारत एक यूनियन होगा, कंप्राइजिंग, यानी क्या क्या शामिल होगा? ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट्स एंड एडिशनल एरियाज आउटसाइड ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट दैट चूज टू ज्वाइन द यूनियन, यानी कि इसमें कौन कौन से एरिया शामिल होंगे जो भारत एक यूनियन बन रहा है उसमें, ब्रिटिश प्रांत, राज्य या ऐसे एरिया जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलेगा इसका हिस्सा बनने का। ठीक है? द टेरिटरीज दैट कंप्राइज द यूनियन shall autonomous unit exercise all the powers and responsible for the government and the administration save those designated and vested the union, यानी कि जो पावर्स जो स्टेट्स होंगे वो ऑटोनॉमस होंगे, उनको खुद से नियम बनाने की शक्ति दी जाएगी। ठीक है? जो संघ के द्वारा निर्धारित की जाएगी। क्लियर? संघ यानी कि यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल सोवरन एंड इंडिपेंडेंट इंडियाज पावर एंड अथॉरिटी एज वेल एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डिराइव फ्रॉम द पीपल, यानी कि जो भी अथॉरिटी होगी संघ की, जो भी पावर्स होंगी वो कहां से ड्राइव होंगी? द पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि जो शक्ति होगी, शक्ति का केंद्र होगा भारत की जनता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडियंस मस्ट बी गारंटीड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेयरनेस, इक्वलिटी ऑफ पोजीशन, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड बेसिक फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। ठीक है? सब्जेक्ट टू द लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। जो पॉइंट हमने अभी बात की थी फ्रीडम और फ्रीडम, बिलीफ का हो गया, जस्टिस का मैंने पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ, तो वो सब पॉइंट, ये वाला पॉइंट है वो। ठीक है? माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड द ट्राइबल, मतलब प्रोटेक्शन वाला था, यहाँ पे आ गए हम। नेक्स्ट है हमारा द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एज वेल एज सोवरन राइट ऑन द लैंड, सी एंड एयर शुड बी प्रिजर्व इन द अकॉर्डेंस विद द सिविलाइज्ड जस्टिस एंड लॉ, यानी कि जो लैंड, एयर, सी से संबंधित जो भी रूल होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? कंट्री के लॉ एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अब जो व्यवस्थाएं होंगी देश में, चाहे वो नियम से संबंधित हो, चाहे कानून हो, चाहे कानून किससे जुड़ा हो, एयर से जुड़ा हो, लैंड हो गया, सी हो गया, किसी से भी जुड़ा हो, कोई भी मुद्दा अगर है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा किस तरीके से होगा? कंट्री के जस्टिस एंड लॉ से। यानी अब भारत का अपना कानून और व्यवस्था होगा जिसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज की जाएंगी। द कंट्री वुड कंट्रीब्यूट फुली एंड विलिंगली टू द एडवांसमेंट ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड वेलबींग ऑफ द ह्यूमनिटी, यानी जो अब संघ बन रहा है वो विश्व शांति और मानवता को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से क्या है, इच्छुक है, विलिंगली है और कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि उसमें हिस्सेदारी देगा। नेक्स्ट हमारे कमेटीज आ गए। चलो अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड व्हाट विल हैव द चेंजेस वी हैव। ठीक है? तो टॉपिक है हमारा चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
has been covered in previous lecture. If you have not covered the lecture, you can go with the video and slide as well, then you can continue with the class. Because if you have not the sufficient knowledge about the Indian Independence Act, so I think you will be little bit in trouble when I wrote the details on the digital panel. It will be little bit hard for you. Okay, if you can manage, so you can do as well. I don't have any option, but if you have time, so you can visit the video. I think it will be the better way to understand. So the topic is changes by the Independence Act. Okay. तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे इंडिपेंडेंस एक्ट में। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास हो गया था, दोनों पार्टीज अलाउ हो गई थी, कैबिनेट मिशन भी आ चुका है, इंडिपेंडेंस एक्ट भी आ चुका है, चुनाव भी हो गए हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली gradually they joined it, right? We all know that when we are discussing about the cabinet mission, the princely state were not present in the election. I already wrote here when it was discussed by me. Okay, now gradually they joined the constituent assembly after the acceptance of the Mountbatten plan for the partition of the country. Representation of the most of the princely state take their seat in the assembly. Clear? That was the change, major change happened. Okay, and the one thing is, एक मिनट मैं नोट कर देता हूं. Initially, princely state did not participate in election, but eventually they join the constituent assembly. जब हमने डिस्कस किया था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्टीशन एग्री हो गए हैं। दोनों जो पार्टीज थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने स्वीकार कर लिया था कैबिनेट मिशन। बाद में क्लियर जब आया था कैबिनेट मिशन में पार्टीशन अलाउ नहीं था, लेकिन उसके पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने उसे एक्सेप्ट किया था। क्लियर? तो अभी क्या हुआ है, जब सेशन स्टार्ट हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैज फिल्ड देयर सीट। ठीक है, क्लियर? तो what was the changes that was happened after India Independence Act? Now we are discussing the changes what was the happened after the Indian Independence Act. We have already detailed analysis of the Indian Independence Act. I again and again request, please go through the video before further. The changes what was happened after Independence Act. ठीक है, फर्स्ट assembly was made fully sovereign who could frame any constitution. Clear? This act empowered the assembly to abrogate any law, alternate any law made by the British Parliament relation to the India. Clear? Third, assembly also became a legislative body. This is the important. फर्स्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड वाला हम डिस्कस कर चुके हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाले फॉर्म में। ठीक है, थर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज असेंबली ऑल्सो बिकेम द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो थर्ड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने टॉपिक दोबारा से लिया है, वो है उसकी इंपॉर्टेंस है ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री।
So now we have, now Constituent Assembly have two works. First to frame constitution, and second to make ordinary laws. Clear? I already passed a statement that Constituent Assembly has become the first parliament of the Indian Dominion. ठीक है, यानी कि भारत की संविधान सभा पहली भारतीय संसद बनी. ठीक है, यानी जो संविधान सभा थी उसको दो काम दिए गए, एक तो संविधान बनाना और दूसरा उनका एक काम था कि वह भारत के लिए नॉर्मल जो साधारण कानून है उनको भी बनाए. ठीक है, तो सॉरी, तो ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये बन गई थी लेजिस्लेशन बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी. जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, संविधान बनाएगी, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहेंगे. जो सिंपल ऑर्डिनरी लॉज बना रही है उसे कहेंगे हम लेजिस्लेटिव बॉडी. सिंपल है. अब देखो, जब जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो दो तरीके से काम कर रही थी, एक एज ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी एंड सेकंड विल एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, राइट. तो व्हेन दे मीट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, यानी कि जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी. ठीक है, यानी कि जब संविधान सभा के लोग संविधान बनाते थे, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्लियर? एंड व्हेन दे मीट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो दैट मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द जीवी मावलंकर. तो जब वो विधान बनाने के लिए, यानी कि विधानसभा के रूप में कार्य करते थे, तो उस सभा की अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर. I hope this is clear. Tell me if it is not clear. I can revise for you. तो मैं दोबारा से एक बार कंक्लूड करता हूं. ठीक है, संविधान सभा देश की पहली संसद बनी. क्यों? क्योंकि संविधान सभा दो कार्य करती थी. पहला, संविधान बनाना. नंबर दो, विधान बनाना. विधान बनाना इन द सेंस कि ऑर्डिनरी लॉज बनाना, सिंपल कानून बनाना. ठीक है, सिंपल कानून बनाना. जब वो ये काम करते थे तो उसकी अध्यक्षता करते थे जेबी मावलंकर. जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए मीटिंग करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्लियर? ठीक है, क्लियर. ओके, थैंक यू. चलो आगे देखते हैं हम. दीज टू फंक्शंस, यानी कि कौन सी बात कर रहे हैं, ये वाले. दीज टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल 26/1949 व्हेन द टास्क वाज ओवर. सिंपल मीन क्या है, संविधान सभा दोनों रूपों में कार्य करती रही. कब तक? जब तक संविधान बना नहीं. यानी कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के रूप में तथा विधानसभा के रूप में कार्य करती रही. क्लियर? चलो पानी, एक मिनट. Thank you. So let's begin the class. Resume the class. Now, what was happened? Muslim League withdraw their members from the Constituent Assembly. So what will be happened? The number was decreased. All numbers. If we talk about total numbers, if we talk about the numbers related to the British province, if we talk about the numbers of princely state, the overall number will be decreased. So we have to aware about the numbers when the Muslim League withdraw their members from the Constituent Assembly. Clear? Chalo. So when the Muslim League withdraw their members from the Constituent Assembly, from the total number will be decreased. So first we will talk about the total numbers.
total numbers. According to cabinet plan, the number was 389. Okay, number was 389. And what will be the number after the withdrawal of the Muslim League members? It has become 299. Correct? I hope it has not any rocket science. It's a very simple fact. Okay? If we talk about the British province, what was the number of British province? It was 296. It was 296 and decreased by the 290, 292. Sorry, है ना? Sorry. So it is correct. So according to cabinet plan, British province has 296 members in the Constituent Assembly, but after the withdrawal of the Muslim League members from the Constituent Assembly, it has become 229. यानी कि संविधान सभा से ब्रिटिश प्रांत की 296 सीटें थी कैबिनेट प्लान के अकॉर्डिंग, बट मुस्लिम लीग ने अपने सदस्य निकाल लिए, यानी कि मुस्लिम लीग पार्टीशन हो चुका है पाकिस्तान का, तो उन्होंने अपने मेंबर्स निकाले तो सीट घट गई। सीट घटी कितनी हो गई? 229। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसली स्टेट हैज 93 सीट्स एंड इट हैज बिकम 70। क्लियर? तो 93 and it had become 70. So according to, एक मिनट साफ साफ लिख थोड़ा सा, it was according to cabinet plan. ठीक है। and after withdrawal of Muslim League members. Clear? Now it is very understandable. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा other function that was prepared and that was performed by the Constituent Assembly with the making of the Constitution. We all know we have multiple committees to frame the Constitution. So every committee has own work, and the multiple committees is going on. Multiple committees running to frame the Constitution. Clear? So in addition to the making of the Constitution and enacting the law, the Constituent Assembly also performing few functions, right? So it has a 4 to 5 fact. I am writing on the board what was the function which was going on with the framing of the Constitution. ठीक है। यानी कि संविधान सभा जब संविधान बनाने के लिए कमेटीज काम कर रही हैं, तो उसके साथ साथ कुछ और भी काम किए जा रहे थे। ठीक है। जैसे कि राष्ट्रगान का अपनाना कब अपनाया गया था, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था, झंडा कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान तिरंगा बोलते हैं, कब राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया गया। तो ये सब चीज क्या है? ये अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि संविधान बनाने से अलग की चीजें हैं, तो ये भी साथ चल रही थी। तो ऐसे ही 4 to 5 फैक्ट हैं जिनको मैं नोट कर दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप सब नोट कर लीजिए। ठीक है। तो इट रेक्टिफाई, कौन रेक्टिफाई कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रेक्टिफाई करेगी, और कर रहा है सिंपल। इट रेक्टिफाई द फ्लैग, नेशनल फ्लैग, सॉरी इट रेक्टिफाई नेशनल फ्लैग नहीं, नेशनल फ्लैग नहीं, सॉरी, इट रेक्टिफाई इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। ये पॉइंट हो, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑन May 1949, ऑन May 1949। तो फर्स्ट फैक्ट था कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता को रेक्टिफाई किया संविधान सभा ने। यह पहला फैक्ट था। ठीक। सेकंड, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, यानी कि जुलाई 22 1947, यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय झंडे को अपनाया, राष्ट्रीय झंडे को। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन 24 जैन 1950। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। क्लियर? इसी तरीके से नेशनल सॉन्ग ऑन 1950। क्लियर? एंड वन मोर फैक्ट इज it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of the India on 24 Jan 1950। यानी कि 1950 इसी डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as first president of India on 24 Jan 1950। So date is important in this scenario, so don't be confused. Now we have all fact in one frame। तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता कब ली गई? मई 1949। नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। नेशनल एंथम कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम होता है जन गण मन, जन गण मन, और वही नेशनल सॉन्ग होता है वंदे मातरम। तो इसमें भी क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट कब इलेक्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। So these are the fact in one frame. You can take a snap. In all, Constituent Assembly had 11 sessions over the 2 years, 11 months and 18 days. This is the another fact we have to mention on the screen. So total session. How many sessions of Constituent Assembly was held? 11 sessions. And if we talk about the time period, (2 years, 11 months, 18 days). If we talk about the total expenditure, approx 64 lakh, 63,93,720 रुपये कुछ है एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 64 लाख ही काउंट करते हैं। ठीक है? इफ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस वर रीड, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस वर गॉन थ्रू बाय द मेंबर्स टू फ्रेम दिस ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, तो अप्रोक्स 64। यानी कि भारत के संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और तब वहां से अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चीजों को बदल के रखा गया। ऐसे एक क्रिटिक्स बोला जाता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है ना? तो अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर सर, उनका ये कहना था कि भारत का संविधान सभी संविधानों को पढ़ने के बाद बनाया है, किसी की कॉपी नहीं है। हमने जो संविधान बनाया है वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार चेक करते हुए बनाया है, तथा जो संविधान के मूल बेसिक टॉपिक हैं, टॉपिक कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, वो पहले ही निर्धारित किया जा चुके हैं। तो अगर किसी का ये कहना है कि वो टॉपिक क्यों लेंगे, तो ये ठीक नहीं है ना? मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। टेक्निकल तो बहुत टफ है, टेक्निकल वर्ड उनके, बिकॉज वेरी लीजेंडरी मैन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वेरी लीजेंडरी मैन। ठीक है? तो अप्रोक्स 60 कंट्रीज का संविधान डिस्कस किया गया, और अकॉर्डिंग टू आर situations we have framed our constitution। ठीक है? तो on January 24, 1950 the Constituent Assembly held its final session। यानी कि संविधान सभा का अंतिम सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा है, और 24 जनवरी 1950 को उस 2 दिन पहले संविधान सभा का अंतिम सेशन हुआ। ठीक है? तो नोट कर लेते हैं। ऑन 24
then 1950 the last session of the Constituent Assembly was held. Clear? Clear. यानी कि it was final session, है ना? कोई लास्ट सेशन नहीं है तो फाइनल सेशन. ठीक है. Now we will go with the third topic of the class, that was related to the committees and facts. So till now we have covered majorly things related to the Objective Resolution and Independence Act. Till now we have covered lot of things in the previous lecture as well. So be very attentive and be revised, be ready for the revision. In the next class I have very questions. I have several questions like PYQs, so that you can relate the thing, how is the paper, the exam was held. So be very attentive, be very passionate regarding your preparation. Okay? So further we are initiating our next topic, that is related to the committees. We all know when the Constitution was framing, we have several committees which has own limits and directions to the work. Okay, so we have two type of committees. Number one, major committees. Number two, minor committees. ठीक है. The Constituent Assembly appointed. अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कमेटी, है ना. तो हम ऐसे कमेटी बोलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बताने तरीका होता है ना, वो देखो. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल टू डील with a specific task, we can say that is the committee. Okay, it has many type of ad hoc committees, parliamentary committees, permanent committees. Now we are not going in that type of detail because of we are discussing now the constitutional part, and in this part we have two type of committees, that is major committees and another one is minor committees. Okay, so first of all we will discuss the major committees and their chairmen. After that we will discuss the minor committees and their chairmen. So start with the slide because it is pure factual information. So first committee हमारे पास है, yes, this is the major committees. We have Union Power Committee, the chairman of Jawaharlal Nehru. Another is Union Constitutional Committee, Jawaharlal Nehru. Provincial Committee, Constitutional Committee, Sardar Vallabhbhai Patel. Drafting Committee, Dr. Bhimrao Ambedkar. This is the very important committee. We will discuss it in personally, है ना. When will the committee was constituted and how many members it has and what is the work it has done. Okay, we will discuss this committee in detail. Advisory Committee on Fund, Right and Minorities, Tribal Excellence, Sardar Vallabhbhai Patel. Rule Process Committee, Dr. Rajendra Prasad. State Committee, Jawaharlal Nehru. Steering Committee, Rajendra Prasad. This is the pure factual information we have. So we have little bit understanding if you try to understand. देखो, the committee who is related to the union, definitely moral case, the chairman will be Pandit Jawaharlal Nehru. Clear? And if you notice on the board, the committee which is related to the procedure, rule, regulation, the chairman will be Dr. Rajendra Prasad. यानी कि ऐसी समिति जो संघ से रिलेटेड है उनके चेयरमैन आपको अधिकतर दिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऐसी कमेटीज जिनके चेयरमैन आपको जो दिखेंगी प्रक्रिया से संबंधित या फिर रूल से संबंधित, तो उनके चेयरमैन आपको दिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. देखो, संघ से संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखे, ड्राफ्टिंग का तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये अलग से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है. एडवाइजरी को ऐसे याद कर सकते हैं कि एडवाइस कौन करता है, होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे याद कर सकते हैं, है ना. रूल रेगुलेशन, तो जो रूल और रूल प्रोसीजर क्या होंगे कौन बताएगा, एक कमेटी होगी, तो उसका चेयरमैन अभी भी लोकसभा, जैसे लोकसभा की जो रूल प्रोसीजर है उसका चेयरमैन अभी भी लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टेट कमेटी, जो पीएम साहब हैं वो स्टेट कमेटी में चेयर करते हैं आज भी, ये हो गया. लाइक हम बात करें नीति आयोग को, हम समझ सकते हैं स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ सकते हैं. तो जब आप डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी. अगर आप वन लाइनर के साथ जाएंगे तो आपको चीज़ें इधर उधर दिखेंगी और आप रिलेट नहीं कर पाओगे खुद से. जब आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाते हैं तो आपको बैक कॉन्सेप्ट चला जाता है और वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा. ठीक है, तो फैक्चुअल होने के बाद भी ये याद करने लायक चीजें हैं. नेक्स्ट है हमारा माइनर कमेटीज. माइनर कमेटी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी पट्टाभी सीता रमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ए एम मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कमेटी एग्जाम में आ चुकी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जे बी महाबलंकर। क्लियर? तो ये थी हमारी बेसिक माइनर, ये वाली कमेटी है ये माइनर कमेटी थी, और जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी है वो हमारी मेजर कमेटी थी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कमेटी है, लेकिन ये वो कमेटीज हैं जो एग्जाम में आई है या आने की संभावना है। उन कमेटियों को मैंने सिनॉप्स में यहाँ पे रखा हुआ है। आप पूरी कमेटी याद कर सकते हैं। इफ यू आर कैपेबल टू डू सो यू कैन गो विद दिस, बट इट इज एट लीस्ट वी हैव टू डू, राइट? सो इट इज मैंडेटरी टू डू। इफ यू आर एबल टू डू मोर यू कैन गो विद दिस। ओके, चलो नेक्स्ट है, I already told you that the draft committee was very important, so we will discuss the draft committee in detail. So start drafting committee. Draft committee. Among the all committees of the Constituent Assembly, the most important committee was drafting committee. It was set up on the August 29, 1947. And it was chaired by the Dr. Bhimrao Ambedkar. Was chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar. Clear? It has 7 members, including Dr. Bhimrao Ambedkar. So we have to know the names of the members, because of that there are 2 members which was replaced by the another 2 because of death issue and because of death and health issues. So I am writing on the name of the members on the board. I request please take a snap of this. फर्स्ट नेम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड नाम अगर हम बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, थर्ड आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्लियर? फोर्थ नाम है डॉक्टर के एम मुंशी, फिफ्थ नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एंड लास्ट नाम है हमारा एन माधव राव। क्लियर? एन माधव राव। वी हैव 6 members apart from Dr. Bhimrao Ambedkar. If we include the Dr. Bhimrao Ambedkar, it will be 7. 7th T.T. Krishna Machari. So before attempt the question, we have to very sure what was the ask. What was asked in the question? If the question is asking about exclude the Bhimrao Ambedkar, how many members in the draft committee? It will be 6. If the question is saying the total member of the drafting committee, so we will put 7. In the members we have, there are 2 members, Madhav Rao and Krishna Machari, and Madhav Rao replaced V.L. Mittal. So sorry, and Madhav Rao replaced B.L. Mittal, who has resigned due to the ill health. यानी कि इन्होंने रिजाइन दिया था ड्यू टू द हेल्थ, ड्यू टू हेल्थ इशू। ठीक है, एंड टी.टी. कृष्णमाचारी ही रिप्लेस्ड डी.पी. खेतान, रिप्लेस्ड डी.पी. खेतान, और इन्होंने ये इनकी हो गई थी डेथ। ठीक है, डेथ इश्यू, डेथ 1948। ठीक है, यानी कि इन्होंने काम किया था उस टाइम तक।
ठीक है, ये था हमारा ड्राफ्ट कमेटी के बारे में कि ड्राफ्ट कमेटी 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चेयरमैन थे। 7 सदस्य थे। 2 सदस्य एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी, 2 बाद में ऐड हुए थे। एन माधवराव ने बी एल मित्तल को रिप्लेस किया था और टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो हम आ चुके हैं कहाँ पे, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम कभी कहाँ खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन अब होने वाला है आपको। ठीक है, तो कमेटीज बन गई हैं, संविधान सभा काम करने लगी है। ठीक है, अब फैक्ट आता है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया था, यानी कि पहला ड्राफ्ट कब बनकर तैयार हुआ था। तो पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिक डोमेन में लाया गया था और डिस्कशन करने के लिए 8 मंथ का समय दिया था। ठीक है, क्लियर? और सेकंड अगर मैं बात करूं, दूसरा ड्राफ्ट जब लाया गया था वो अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया गया था। क्लियर? इन इंग्लिश वी कैन से फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड in February 1948. It has given 8-month period to discuss the draft of the proposed draft and proposed to the amendment. यानी कि अमेंडमेंट करने के लिए, प्रपोज देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। एंड द सेकंड ड्राफ्ट विच वाज पब्लिश्ड अक्टूबर 1948। क्लियर? तो 2 चीजें थी, 2 फैक्ट हमने पढ़े कि फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ड्राफ्ट कब लाया गया था? फरवरी 1948, फरवरी 1948। और डिस्कस करने के लिए, डिस्कस एंड सजेशन, डिस्कस एंड सजेशन के लिए कितना समय दिया गया था? डिस्कस एंड प्रपोज्ड टाइम दिया गया था 8 मंथ। क्लियर? सेकंड ड्राफ्ट कब लाया गया था? सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा कब एनेक्ट हुआ, कब लागू हुआ, कब बनके तैयार हुआ, वो सब चीजें हम एक जर्नी देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। उससे पहले रीडिंग कब हुई, कब हुआ, वो फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। 1 मिनट, ताकि हमारा जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम कंक्लूड कर देंगे लास्ट तक। ओके, चलो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड ए फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन नवंबर 4, 1948। नवंबर 4, 1948। तो टॉपिक है हमारा एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर moved introduced the constitution in assembly November 4, 1948। क्या हुआ? इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन 1948। दिस नाउ इट वाज फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की पहली रीडिंग हुई है। कभी पहली रीडिंग 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, एंड असेंबली है जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज, यानी कि पहली रीडिंग हुई और 5 दिन तक डिस्कशन रहा, जनरल डिस्कशन ऑफ 5 डेज। बेसिक, ठीक है, क्लियर? सिंपल वर्ड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को प्रस्तुत किया 4 नवंबर 1948 को, पहली बार रीडिंग हुई और एक जनरल डिस्कशन हुआ कि हाँ संविधान का एक प्रतिलिपि ड्राफ्ट तैयार है। ठीक है, 9 नवंबर 1948 को तक डिस्कशन हुआ। ठीक है, अब बात करें सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग हुई थी क्लॉज बाय क्लॉज, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज हुई थी और यह स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर 1948। नवंबर 15, 1948 स्टार्ट। क्लियर? अगर बात करूं मैं सेकंड रीडिंग कब तक चली थी? अक्टूबर 17, 1949। अक्टूबर 17, सॉरी 17, 1949।
एंड, ठीक है। इस Yes, guys, welcome back to the channel. Due to technical issue, the class was paused. So let's resume the class and resume our topic. So we are discussing the second reading of the draft, and we were talking about what was the difference between first reading and second reading. In second reading, the draft was discussed by clause, and during this process, approx 7653 amendments were proposed, and 2473 were actually discussed in the assembly. Correct? So it was the difference between first reading and second reading of the constitution. Now we will discuss the third reading of the draft, which was started November 14, 1949. Dr. Bhimrao Ambedkar moved a motion in the assembly, and the name of the motion was "The Constitution is settled by assembly." The Constitution was settled by assembly be passed. यानी कि भारत का संविधान का जो ड्राफ्ट था थर्ड रीडिंग हुआ और एक प्रपोजल लाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और जो असेंबली के द्वारा पास किया गया। ठीक है, पास कब किया गया था? 26 नवंबर 1949. द मोशन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 49. यानी कि जो मोशन था पास किया गया 26 नवंबर 1949. यही वो डेट है जो भारत के प्रियम्बल में, भारत के संविधान के प्रियम्बल में आज भी लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ था? मूव लाया गया, प्रपोजल लाया गया, पास किया गया, एंड जो असेंबली मेंबर्स थे उस समय पे, ठीक है, जो असेंबली मेंबर थे उनको उनके सिग्नेचर रिसीव किए गए। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम बात करें एट दैट सेशन, एट दैट टाइम, हाउ मेनी मेंबर्स वर प्रेजेंट इन दैट सेशन? तो नंबर थे 284 सदस्य उपस्थित थे उस सेशन में, जिसमें थर्ड रीडिंग हुई थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल था वो एक्सेप्ट किया गया था। राइट, क्लियर? तो रिसीव मेंबर्स ने साइन किया, सिग्नेचर किया और कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया जो ड्राफ्ट था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो ड्राफ्ट था, ठीक है, वो ही संविधान का प्रारूप था। प्रारूप, क्लियर? ऑन विच द पीपल ऑफ द इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, एनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ। 3 वर्ड मेंशन है प्रियम्बल में। अडॉप्टेड यानी कि स्वीकार करना, एनेक्टेड लागू करना, गेव टू योरसेल्फ अपने आप को समर्पित करना यानी आत्मार्पित करना। ठीक है, तो प्रियम्बल में 3 वर्ड लिखे हुए हैं और इसी तरीके से सिग्नेचर के साथ ही पास किया गया। क्लियर? अब बात करते हैं कि जब बेसिक जो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट था यानी कि आधारभूत संविधान, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब अस्तित्व में आया तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, यानी हाउ मेनी आर्टिकल्स इट हैज, हाउ मेनी शेड्यूल्स इट हैज, राइट? So now I am writing that data on the board. When the constitution was enacted, adopted and gave to themselves, it contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. I hope it is clear now. ठीक है, यानी कि जब भारत का संविधान लागू किया गया था, जो आधारभूत संविधान था, उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनेक्टमेंट की, एनफोर्समेंट, यानी कि लागू किस तरीके से हुआ संविधान। लागू जब हम बात करते हैं एनफोर्समेंट की, तो वी हैव 2 फेज ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे पास 2 फेज के रूप में संविधान को लागू किया गया। फर्स्ट जो फेज हम बात करते हैं वो था ऑटोमेटिक, यानी कि बेसिक कानून जो उस समय मानव के पास थे उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया गया, इमीडिएट इफेक्ट से, एंड जो रिमेनिंग पार्ट था उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। क्लियर? तो एनफोर्समेंट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो एक तो था टेम्पररी, टेम्पररी मीन्स इमीडिएट प्रभाव से, जो इमीडिएट इफेक्ट से जो लागू होते। रिमेनिंग पार्ट लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। क्लियर। It has own story why we have and why we enforcement our constitution on 26 January 1950. This day is referred to constitution as the day of commencement. Why? Because we celebrated a day 26 January. It has a specific importance as a historical day. Why? Why it has a historical importance? Why? Because of it was a day where we celebrate first time in 1930 as a पूर्ण स्वराज डे, यानी कि पहली बार हमने 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया था रावी नदी के किनारे। एंड द सेशन वॉज कॉल्ड लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में, जिसे लाहौर सेशन बोलते हैं, दिसंबर 1929 में। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को हमने एज ए पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया था, इसलिए हमने जो अपना संविधान अपनाने का, लागू करने का डेट रखा वो रखा 26 जनवरी 1950। तो आई होप इट इज क्लियर इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, थैंक यू। तो लेट्स फर्दर प्रोसीड। व्हाट इज द प्रोविजन दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द इमीडिएट इफेक्ट। तो जब हम बात करते हैं बेसिक कानून की, बेसिक कानून जो रहेंगे वो तुरंत लागू होंगे। देश में चुनाव होने थे, है ना, या फंडामेंटल जो थे बेसिक कानून, या सिटीजनशिप का उस समय जिसका पार्टीशन हुआ है तो सिटीजनशिप को लेकर तुरंत नियम कानून लागू होने थे। तो ऐसे जो बेसिक कानून थे उनको तुरंत लागू किया गया, यानी कि जो कानून किस संबंधित थे, इलेक्शन से संबंधित या फिर सिटीजनशिप से संबंधित हो, या फिर जो पार्लियामेंट्री, टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविंस थे, जो ट्रांजिशनल हो रहा था, जो फेज था, उससे संबंधित कोई भी कानून जो थे उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया गया। यानी कि ये खुद से ही लागू थे, क्योंकि क्या थे, बेसिक कानून थे। ठीक है, जो फंडामेंटल कानून थे वो तुरंत प्रभाव से लागू किया गया, खुद से वो लागू हो गए थे। ठीक है, क्योंकि खुद के कानून, खुद की स्वतंत्रता के लिए ही हमने आंदोलन किए थे, हमने मूवमेंट किए थे। ठीक है, तो आज वो मौका था तो वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। क्लियर। आई होप आई एम क्लियर कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, व्हाट वाज हैपेंड एंड 26 1950 एंड व्हाई वी हैव चूज 26 जनवरी 1950 एज ए कमेंसमेंट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है तो थैंक यू। ठीक है, व्हेन वाज the constitution enforcement, what has happened with this commencement of the constitution, the Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935 and all amending and supplementary letter act was repealed। सिंपल शब्द में कहें, भारत के संविधान के लागू होने के बाद, लागू होने के साथ ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 और उससे संबंधित जो सप्लीमेंट्री कानून थे सबको निरस्त किया गया, यानी सब निरस्त हो गए। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ वी विल टॉक लिटिल बिट फैक्ट्स। व्हाट वाज द फैक्ट इन रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट फैक्ट इज द एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज ए सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, एलिफेंट। It is the pure fact. No need to worry. Just learn and mention anywhere where you can revise on daily basis so that it is easy to learn. Next fact है, Sir B.N. Rao was the constitutional advisor of the Constituent Assembly। यानी कि B.N. Rao was the advisor। बहुत ही ये कहेंगे ना प्रोमिनेंट पर्सन थे, जैसे हम अम्बेडकर साहब को पढ़ते हैं वैसे ही। वेरी एफिशिएंट पर्सन इज दिस। B.N. Rao अपॉइंटेड एज ए एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वर्ड का ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है हमारा HB अयंगर वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी तरीके से द SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन। लाइक दिस द प्रेम बिहारी नारायण राजदाता द कॉलीग्राफर। So we have various personality who has worked to frame the constitution. Number one is
B.N. Rao, the constitutional advisor, H.V. Iyengar, the secretary to the Constituent Assembly, S.N. Mukherjee, the chief draftman, and Prem Vihar Narazada, the calligrapher. Ji, thank you. Thank you for watching this video. I hope you are doing well and the class is very beneficial to you. If the class is beneficial to you and you are feeling it is good to you, so I request you please subscribe the channel if you have not done till now. It will help me more and it will be motivate to me to work more to you and deliver the best to you. So I request you to once again, thank you very much and subscribe the channel please. And hit the bell icon so that you can the information regarding the next class. Next class will be related to the math, so don't worry. The class of math will be coming soon. Thank you for watching. Have a great day. Thank you.